Good morning, dear students. Yesterday's work is done by everyone, which was given. One practical was given. I hope you all have done that. And the practical must be done accordingly as I have given instructions that what is to be done which side. कि कौन सी साइड पे क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रैक्टिकल मीन्स लैब मैनुअल करनी है. अगर फिर भी कोई डाउट है कि मैम कैसे क्या करना है देन यू कैन आस्क. ओके अगर कोई डाउट है कि मैम व्हाट इज़ टू बी रिटन विच साइड, फर्स्टली यू कैन सी द पिक विच आई हैव सेंट ऑन दैट डे कि कौन सी साइड पे क्या करना है. फिर भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट वेयर वी आर इन दिस पैराग्राफ. ओके सो लेट अस स्टार्ट. Do you see any relation between the angle of incidence and the angle of reflection? Yesterday I tell you about some means two laws of reflection. दो laws है reflection के. First क्या है? The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay, this is the one of the law of reflection. ये यहाँ पे है. You can see here in this column. It is seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Clear? They will be approximately equal. This is the first law of the reflection. Okay. So first law क्या है reflection का? Write down in the comment section fast. First law ये है कि angle of incidence is always equal to the angle of reflection. और second law क्या है? Second law जो कि हम next page में करेंगे. It is here that you can see the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all they lie in the same plane. Clear? सभी same plane में lie करेंगे. Clear? So let us come back there only. Now one activity is there. This one, activity 16.2. Let us start. Perform activity 16.1. 16.1 जो कि हमने की थी उसमें क्या था कि हमने एक वाइट शीट की पेपर लेके बोर्ड पे रख के मीन्स टेबल या किसी बोर्ड पे रख के हमने एक कॉम लिया था, उसकी ऑल ओपनिंग्स क्लोज की थी. ओके देन वी जस्ट मस्ट ओपनिंग एक मिडल में ओपनिंग रहनी चाहिए उसकी ओपन. क्लियर? देन वी कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज उसको कवर करने के लिए एक्सेप्ट वन इन द मिडल. ओके होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. तब हम उस होल से टॉर्च की हेल्प से कॉम से लाइट डालेंगे जो साइड हमने ओपन कर रखी है. क्लियर? देन वी कैन सी द रिफ्लेक्शंस, देन वी कैन सी द लाइट. सो इस एक्टिविटी में क्या है लेट अस सी. इन दिस एक्टिविटी वी विल सी कि 16.1 एक्टिविटी यूज़ करनी है बट वी कैन यूज़ दिस टाइम अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर. स्टिफ क्या है? हार्ड. वी कैन यूज़ अ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर. स्टिफ का मीनिंग क्या है? हार्ड पेपर. लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल. क्लियर? जो शीट है इट शुड बी ऑफ द बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल. ओके कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल. जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन है शीट का हम उसको मिडल में से काट देंगे. नाउ लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे. Make sure that a reflected ray extends to the projection portion of the paper. Clear? I will send video also for this. You can watch that video also. That will be more clear. Okay. So can you see still reflected ray? Bend that part of the क्या projected portion on which the reflected ray falls. हम उसको part को bend कर देंगे. Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you infer? क्या हम दोबारा उसको देख सकते हैं? So when the whole sheet, now we are here, concentrate here please. When the whole sheet of paper is spread on the table, जब जो पेपर की शीट है वो स्प्रेड हो जाए टेबल पे, it represents one plane. ये एक प्लेन को शो करेगी. The incident ray, the normal at the points of incidence and the reflected ray all are in this plane. Okay. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Clear? Then you do not see the reflected ray. अगर हम उसको बेंड कर देंगे then we can not see the reflected ray.
what we can see only the, what we can create only the incident ray and the normal. Clear? So इससे हमें क्या मिला? From this we will get the second law. This is here. Okay, this is here, that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. Okay, so Paheli and Bujo performed this activity outside the classroom with the sun as the source of light. Source of light क्या use किया उन्होंने? Because in the daytime we can use the source of light as sun instead of a torch. You too can use the sun as a source of light. Okay, so Bujo remember that in the class 7th class में क्या किया था आपने? You had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. प्लेन मिरर की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की इमेज कैसी फॉर्म करेगा प्लेन मिरर. सो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 4 पॉइंट्स आर गिवन. लेट अस रीड दिस. वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? इमेज कैसी थी? सेम साइज की थी या नहीं थी? डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट? क्या सेम डिस्टेंस था? क्या हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन करना मीन्स कि इमेज रियल है या वर्चुअल है. रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे गेट कर सके, ऑब्टेन कर सके. एंड वर्चुअल इमेज विच वी कैन नॉट गेट ऑन अ स्क्रीन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, लेट अस अंडरस्टैंड a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way. Okay, so for this also I will send you the what video, you can see there only. So better it is leave it, we can go to the next part. इसमें एक डेफिनेशन है, लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या है? मीन्स an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right. lateral inversion means invert हो जाना positions का, जिसमें हमें left तो right दिखे और right left दिखे. clear? इसमें क्या होगा? पोजीशन जो है इन्वर्ट हो जाएगी. लेट अस रीड दिस एक्टिविटी वंस. अब इसको रीड करते हैं 16.3 को. अ सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. ओके, अ सोर्स ऑफ लाइट O. O कहाँ पे है? ये रहा. ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट ऑफ अ प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर PQ. ये है प्लेन मिरर PQ. क्लियर? टू रेज OA एंड OC. OA ये, OC ये. ओके, सो PQ क्या है? इसमें प्लेन मिरर है. सोर्स ऑफ लाइट क्या है? O है. टू रेज OA और OC आर इंसिडेंट ऑन इट. सोर्स से क्या डाल रखी है? OA और OC दो क्या डाल रखी है? रेज इंसिडेंट है इस पर. कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज? हमें क्या इसमें क्या निकालनी है? रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन. ओके, सो इसके लिए नाउ ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ. ओके, जो सरफेस PQ है हम उस पर क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल एट द पॉइंट A एंड. सो हमने क्या किया? नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे टू द सरफेस ऑफ PQ. पॉइंट क्या है? A और C से. ओके, वो नॉर्मल्स कौन से हैं? यू कैन सी दीज टू. A और C पे हमने क्या ड्रॉ किए? नॉर्मल्स. यू कैन सी दीज टू स्ट्रेट लाइन्स. ओके, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट A एंड C. इसके बाद हमने नॉर्मल ड्रॉ किए थे A और C पे. ये A है, ये C है. नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने इन पे रिफ्लेक्टेड रेज डाली. ओके, रिफ्लेक्टेड रेज A और C से. सो हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज? कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD. ओके, तो ये रेज कौन सी होंगी? AB और CD होंगी. क्लियर? सो एक्सटेंड देम फर्दर. उनको हम आगे एक्सटेंड करेंगे. डू दे मीट? एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स. बैकवर्ड करेंगे क्योंकि आगे तो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ही. जैसे AB और CD रिफ्लेक्टेड रेज थी, हम उनको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, उनको बढ़ाएंगे. ओके, डू दे मीट नाउ? इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज I. ये इस पॉइंट पे मिली जिसको हमने क्या मार्क कर दिया? I मार्क कर दिया. ओके, फॉर ए व्यूअर्स I एट E, यहाँ पे I है.
जो उसको देख रहा है. Do the reflected rays appear to come from the point I? Do the reflected rays appear to come from the point I? Since the reflected rays do not actually meet at I. Okay, actually नहीं मिलेंगी, but only appear to do so. वो हमें ऐसी appearance दिखाएंगी, but actually में meet नहीं होंगी. So we can say that a virtual image at the point O, okay, is formed at I. इसमें क्या है कि but only appear to do so. We say that a virtual image. So plane mirror ने कैसी इमेज बनाई? Virtual image of the point O is formed at I. As we have learned already in class 7th, such an image cannot be obtained on a screen. जैसे कि मैंने बताया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर. टू टाइप्स की हैं, रियल इमेज विच वी कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज विच वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती. ओके, सो इससे नेक्स्ट है, यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की दैट विल बी अपीयर एज द राइट, और जो राइट है दैट विल बी अपीयर एज द लेफ्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल इन्वर्जन. ये क्या होते हैं? इट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल कम टू दिस पॉइंट कि व्हाट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? क्लियर? सो लेट अस कम टू दिस पॉइंट नाउ. Read this activity 16.4. Dear students, when I am reading, please concentrate in your books because this is to be done from the book only. ये हम सिर्फ बुक से कर सकते हैं अच्छे से. So please, your concentration must be in your books. Still, if you feel any doubt, then you may ask in the comment section. Okay? So lateral inversion क्या है? Left of the object appears as right and right of the object appears as left. Okay, so we are here in this activity now. 16.4. Imagine that parallel rays are incident on an irregular surface. ये irregular surface है. Okay, then rays reflected from irregular surface is being shown. Remember that the laws of reflection are valid at the each point of the surface. जो laws of reflection थे कौन से थे? One was this के angle of incidence is always equal to the angle of reflection, and the second one was this, that incident ray normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. सभी कैसे होंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे. सो वी आर हेयर इन दिस पॉइंट कि रिमेंबर दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस. सभी सरफेस के पॉइंट पे वर्क करेंगे. Use these laws to construct reflected rays at various points. Are they parallel to one another? You will find that these rays are reflected in different directions. ये कैसे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी? डिफरेंट डायरेक्शंस में. ओके, सो कम टू दिस डायग्राम वंस. इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस. दिस सरफेस इज इरेगुलर. सरफेस कैसा है? इरेगुलर. इफ यू विल सी अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी द रेगुलर सरफेस. मीन स्मूथ और रफ सरफेस क्या होते हैं? जिसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो. इफ़ आई मेक सरफेस लाइक दिस, अगर मैं सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये होगा इरेगुलर सरफेस. यू कैन से रफ सरफेस. इफ़ आई विल ड्रॉ अ स्मूथ सरफेस जिसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो. ओके, समटाइम्स व्हेन यू हैव सीन यू आर गोइंग ऑन अ रोड समवेयर, इफ द रोड इज स्मूथ द व्हीकल विल फ्लो, विल राइड स्मूथली. बट अगर सरफेस ही ऐसा है देन द व्हीकल विल ऑल्सो मूव लाइक दिस. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस. सो ये है इरेगुलर सरफेस, पैरेलल रेज हैं. नाउ रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, सो दीज विल गो इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई these will move into the different directions. Now next this point now, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel. Okay, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular. Diffused or irregular means जो किस पे होगा? rough surface पे होगा. When these all are not parallel, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी सारी पैरेलल नहीं होंगी. ओके, द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ वर्क नहीं करता है. इट इज़ कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये किसने कोज की? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं उसने, लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड. सो नेक्स्ट पॉइंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इरेगुलर सरफेस टिल. बट अगर हम नेक्स्ट बात करें रेगुलर सरफेस की, जिसमें कोई एज आई टेल की जिसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो, जो स्मूथ हो, ऐसे मीन्स इट इज़ जस्ट वर्किंग टोटली स्मूथली, नॉट लाइक दिस जिसमें इरेगुलरिटीज़ हो. ओके, सो ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. मीन्स जो किस पे वर्क करे? स्मूथ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होगा. इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये हैं डायग्राम, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इट इज़ डायग्राम ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स नाउ. ओके, लेट अस कम टू दिस वन. नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट. किसके कारण देखते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण. मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. एज वी नो कि मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अपनी लाइट नहीं होती है. किससे लेता है? सन से. ओके, सो व्हेन रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट, दिस इज हाउ वी सी द मून. ऐसे ही हम मून को देखते हैं. ये नहीं कि मून की अपनी लाइट है, नो, इट टेक्स फ्रॉम द सन. द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स which shine in the light of other objects called as illuminated objects. Can you name some other objects like this? There are other objects which give their own light, such as sun, fire, flame of a candle, electric lamp. Their light falls on our eyes. उनकी लाइट हमारी आंखों पे गिरती है. That is why we can see them. This is how we see them. The objects which emit their own light are known as the luminous objects. These definition we have done earlier also. Okay, टू थे luminous और non luminous हम कर चुके हैं. We have done this definitions also. Okay, so next point है, reflected light can be reflected again. क्या जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है? So let us start this point. Recall the last time you visited a hairdresser. बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आप कहाँ पे गए थे? हेयर ड्रेसर के पास. शी ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आप मिरर के सामने बैठते हैं ऑब्वियसली. आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, व्हेन योर हेयर कट इज़ गेटिंग कम्प्लीट, यू कैन से इन दिस पिक ऑल्सो, इट इज़ द क्लियर पिक व्हाट इज़ बीइंग शोन. ओके, सो आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, शी ही होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू. आगे तो मिरर ऑलरेडी है, बट मैंने बात की बिहाइंड की. You can see in this diagram, this barber is holding a mirror at the back of the person who is sitting in front of the mirror. अगर ये फ्रंट में बैठा है तो ये, अगर इसके पीछे मिरर है, then he can see his back side. Okay, so she hold a mirror behind you to show you how the hair has been cut. आज करके देखना सभी घर में, हेयर कट नहीं, अपनी ऐसे इमेज को देखना. Then you can see your back, what is the condition of your hair. क्या हेयर कट रिक्वायर्ड है या नहीं है? ओके, सो डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड. आप अपने हेड के बैक मीन्स अपने हेयर कैसे देख सकते हैं? ओके, सो हेयर वी डिस्कस अबाउट द पेरिस्कोप. पहेली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी. क्लास 6 में की थी. पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ 2 प्लेन मिरर्स. पेरिस्कोप में क्या होता है? 2 प्लेन मिरर यूज होंगे. ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 2 मिरर्स अनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली. कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर से हाउ वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स जो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है. पेरिस्कोप का यूज़ क्या है? पेरिस्कोप दीज आर बीइंग यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड बाय सोल्जर्स, इन बंकर्स. बंकर्स क्या है? जो उनका स्टोर हाउस होता है, टू सी थिंग्स आउटसाइड. ओके, पेरिस्कोप किसके लिए यूज़ होता है? सबमरीन्स में, टैंक्स में. सोल्जर्स यूज़ करते हैं इन द बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड, अपने बाहर की चीज़ें देखने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल इमेजेस.
multiple images formation. You are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors are used in combination? We know कि एक plane mirror क्या form करेगा, single image form करेगा. But अगर बात करें two plane mirrors की, तो क्या they will form the combination? Let us see for this. Okay, you can see in this activity. You can try this activity at home also. ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो इसमें क्या है, टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट देम एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस टचेस. ओके, हमें टू प्लेन मिरर लेने हैं, राइट एंगल पे ऐसे एडजस्ट करने हैं ईच अदर से कि उनके एजेस जो हैं टच करें. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, you can see in this diagram here, images in the plane mirror at right angles to each other. फिर आप चाहे उसके सामने कोई कॉइन रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट रखें. ओके, इट इज़ रिटन हेयर ऑल्सो, प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन ऑफ द मिरर्स. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कॉइन डू यू सी? नाउ हिंग द मिरर्स यूजिंग द एडहेसिव टेप. हिंग मीन्स उसको ज्वाइन कर देना टेप से डिफरेंट एंगल्स पे. यू कैन से कोई भी एंगल ले लो अपनी मर्जी से, 45 है, 60 है, 120 है, 180 है. प्लेस सम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स कैंडल, इन बिटवीन दैम. नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस. ओके, ट्राई टू सी द इमेजेस लाइक दिस. देन आई विल आस्क इन द नेक्स्ट पीरियड टू यू ऑल कि हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी, हैव यू ट्राइड दिस एक्टिविटीज़, कैसे किया. आई विल आस्क टू एवरी वन. द मेन पॉइंट इज कि हम तो पूछते हैं, वी आर आस्क टू एवरी वन, बट ऑल आर नॉट रिप्लाइंग. सभी रिप्लाई नहीं करते हैं. I don't know why it is so कि if you are, whenever it is the exam time, then we are getting the exam of many students. But अगर बात करें attendance की, वर्क पूछने की, then there is no response. It is very bad. So please give response everyone. Try this activity at home. So आगे क्या है इसमें कि finally set the two mirrors parallel to each other. हमें दो मिरर सेट करने हैं parallel. Find out how many images of a candle placed between them are formed. हमें ये पता करना कि कितनी इमेजेस कैंडल की फॉर्म होंगी. ओके, सो आई थिंक अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. यस, सो नेक्स्ट इन दिस इज दैट कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप. This idea of number of images formed by mirrors placed, I am reading here, at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. Next, I have sent one video yesterday that was of kaleidoscope कि हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती कैसे हैं. kaleidoscope, how many of you tried? किसने ट्राई किया, देखा बना के? ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड. आई नो कि रिस्पॉन्स है तो मिलेगा 1 और 2 का, या मिलेगा ही नहीं, किसी ने ट्राई किया ही नहीं होगा. प्लीज़ टेल एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग अप टू हेयर ओनली. ओके, कैलेडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ऑल्दो आई टेल येस्टरडे ऑल्सो इन द वीडियो. ओके, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट ए कैलेडोस्कोप, क्लियर अबाउट योर वर्क, and watch it carefully and listen it carefully. From this part we will start tomorrow. Okay, up to here today is this much. I hope there should be no doubt to anyone. If any doubt is there, you may come to the comment section and tell there. Okay, thank you everyone.